Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College, Mansehra. Dear student, in the last lecture, we have discussed about particle model of solution and the main point of particle model theory. We also discussed that the solubility and non-solubility of a solution. Now, let's revise the main points of previous lecture. Student, there are following main point of particle model theory that are all matter is made up of small particle. The particle of matter are always in motion. The particle have space between them. Adding heat to matter make the particle move faster. Why we need to study particle model of theory? We study particle model of theory to explain the nature of matter and their attractive with other substance. We also discussed that when solute is added in a solvent, the solubility depend upon solute-solvent interaction. If the force of attraction of solute-solute particle is weaker than solute-solvent particle, then solute will be soluble in water. And if the force of attraction of solute-solvent particle is weaker than solute-solute particle, then in that case solute will be insoluble in water. Like sodium chloride, their solute-solute interaction is weaker than solute-solvent interaction, so that's why sodium chloride are dissolved in water. So in this lecture we discuss about water, why water is a universal solvent, how it can dissolve majority of a substance into it. Water is a universal solvent. Why water is a universal solvent? बच्चों, यूनिवर्सल सॉल्वेंट उस सॉल्वेंट को कहते हैं जिसमें बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे सॉल्यूट आप इसके अंदर डिज़ोल्व हो सकते हों। वाटर को क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर सॉल्वेंट, उनके कुछ रीज़न हम देख लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस डिज़ोल्व होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर liquid. Water is called a universal solvent because more substance dissolve in water than in other liquid. इसका मतलब है कि वाटर के अंदर, वाटर जब कभी भी आपके पास हवा में होता है या ग्राउंड के ऊपर फ्लो करता है या ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्लो करता है, तो इस हर केस के अंदर ये अपने अंदर केमिकल, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देता है, डिज़ोल्व कर लेता है। फिर मैं बताता हूँ, इसका मतलब है कि जब कभी भी वाटर हवा में पास होता है, ग्राउंड के ऊपर फ्लो करता है या ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्लो करता है, तो ये अपने अंदर केमिकल, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को डिज़ोल्व करवा लेता है। It's mean that whenever water goes either through the river, either through the air in a form of water vapors, the ground, river and stream, or through our bodies in a form of blood, food, it dissolves chemicals, minerals and nutrients into it. Why it dissolves chemical, minerals and nutrients? बच्चों, क्यों ये आप वाटर जो है केमिकल्स को, मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को आपस में ख़ुद में डिज़ोल्व करता है? इसकी स्टूडेंट आपके पास एक रीज़न है जो मैं आपको थर्ड पॉइंट में बताने वाला हूँ। इट डिज़ोल्व मेजॉरिटी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू its chemical composition and physical characteristic of water make it a universal solvent. बच्चों, वाटर की जो आपके पास
केमिकल कंपोजिशन है और फिज़िकल जिस्मानी खसूसियात है। इन दो रीज़न की बुनियाद पर वाटर जो है एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसिडर किया जाता है और इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है और फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं देख लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन कहते हैं बच्चों कि इस वाटर जो है ये कौन कौन से केमिकल से बना हुआ है। तो स्टूडेंट आपने शायद इससे पहले भी पढ़ा होगा कि वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो एक ऑक्सीजन एटम पर मुश्तमिल होता है और 2 हाइड्रोजन एटम पर मुश्तमिल होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर consists of 1 oxygen atom and 2 hydrogen atom, and it can be written as H2O. What H2 mean to say 2 hydrogen and 1 oxygen. This is the molecular formula of a water molecules. केमिकल कंपोजिशन इसकी क्या है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर, सो यू शुड आंसर दैट water molecule consists of 1 oxygen atom and 2 hydrogen atom, and it can be written as H2O. उसके बाद स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट, जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके अंदर आपने देख लिया कि 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। मीन टू से दो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं, हाइड्रोजन पार्ट और ऑक्सीजन पार्ट। जो हाइड्रोजन पार्ट होते हैं बच्चों ये ऑक्सीजन वाले पार्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। किस तरह डिफरेंट होता है देख लेते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो स्ट्रक्चर वाटर की यूँ आ जाती है और इसमें देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन वाला पार्ट है और एक ऑक्सीजन वाला पार्ट है। जो ऑक्सीजन वाला साइड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो हाइड्रोजन वाला साइड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए हम कहते हैं हाइड्रोजन side of water molecule is completely different from oxygen side of water molecules। और ये डिफरेंस होने की वजह से डिफरेंट, देखें एक पॉजिटिव एक साइड हो गया एक नेगेटिव साइड हो गया, ये डिफरेंट साइड होने की वजह से इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें इसके साथ अट्रैक्ट हो जाती हैं और इसके साथ अट्रैक्ट होने की वजह से क्या इसके अंदर क्या हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉजिटिव वाली चीज़ आती है, सब्सटेंस आता है, तो पॉजिटिव वाली चीज़ जो है नेगेटिव चीज़ के साथ कंबाइन होकर इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। और अगर कोई नेगेटिव वाली चीज़ सब्सटेंस सॉल्यूट इसके अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव साइड के साथ अट्रैक्ट होकर इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। सो दिस इज़ द बेसिक रीज़न दैट वाई वाटर डिज़ोल्व a lot of a substance into it. The reason is that water molecule consists of 2 sides, hydrogen side and oxygen side. Hydrogen side of water molecule is completely different from oxygen side molecule. This difference make it attractive for different substance, and due to this reason it dissolves a lot of a substance into it. उसके बाद स्टूडेंट आपने पढ़ा लास्ट लेक्चर के अंदर, आपने पढ़ा होगा इससे पिछले लेक्चर में कि जब कभी भी अट्रैक्शन होती है वहाँ पर आपके पास क्या होता है, कोई सब्सटेंस डिज़ोल्व हो जाता है। जहाँ पर अट्रैक्शन होती है वहाँ पर सोल्युबिलिटी हो जाती है, जहाँ पर अट्रैक्शन नहीं होती वहाँ पर सोल्युबिलिटी नहीं होती। तो इस 2 डिफरेंट पार्ट की वजह से वाटर के अंदर डिफरेंट चीज़ों के साथ इसका अट्रैक्शन हो जाता है और ये एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसिडर किया जाता है। ड्यू टू दिस अट्रैक्शन वाटर इज कंसिडर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड इट डिजॉल्व सॉल्ट, शुगर, अल्कोहल एटसेट्रा कैन बी डिजॉल्व इन वाटर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। Now come to the next topic, that is called dilution of a solution. What is dilution of a solution? Dilution of a solution are basically classified as dilute or concentrated on the basis of amount of solute present in it. बच्चों solution को क्लासीफाई किया गया डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में। सोल्यूशन को क्लासीफाई किए हुए डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड ऑन द बेसिस किसके बुनियाद पर,
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उस सॉल्यूशन के अंदर कम है या ज़्यादा है, उस बेस पर सॉल्यूशन को डाइल्यूट और कंसंट्रेशन में क्लासिफाई किए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं डाइल्यूट क्या होता है और कंसंट्रेटेड क्या होते हैं। बच्चों डाइल्यूट, वर्ड डाइल्यूट मीन हल्का सॉल्यूशन या पतला सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो कम मकदार में प्रेजेंट हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन विच कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन जिसके अंदर जिस सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा मिकदार में डिसॉल्व हुआ हो, उस सॉल्यूशन को कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। गाढ़ा सॉल्यूशन, हल्का सॉल्यूशन। हल्का सॉल्यूशन जिसके अंदर कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ हो। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। आप यहाँ से इजीली डायग्राम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखें आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर मैं रेड कलर के जितने भी मैंने डॉट लगाए हुए हैं, ये आप मान लें कि ये सॉल्यूट है। इस सॉल्वेंट के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉल्यूट मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुए हैं। अब इस सॉल्यूशन को देख लें, इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ सॉल्यूट, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुआ है। जिसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है उसको डाइल्यूट कहेंगे, और जिसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। एक आसान एग्जांपल मैं आपको और दे सकता हूं कि आप घर में एक स्पून आप शुगर एक ग्लास के अंदर डालें, वो आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर उसी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर आप 10 स्पून शुगर डालेंगे तो वो आपके पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। चलिए एक बार फिर मेन पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट मेन पॉइंट ऑफ आवर लेक्चर इज व्हाई वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। स्टूडेंट इसकी मैंने आपको जर्नल एक रीज़न बताई थी जो मैं आपको फिर रिवाइज करवा लेता हूँ। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट because its chemical composition and physical characteristic. In physical composition, it contains one oxygen atom and 2 hydrogen atom per molecule. Hydrogen side of water molecule is different from oxygen atom. The oxygen side of water molecule is negative charge, while hydrogen side of water molecule is positive charge. This difference make it attractive for other substance, and majority of a substance dissolve into it, and so that's why it is called a universal solvent. Second student, beneficial property of a universal solvent. ये वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसके क्या क्या बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज हैं। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट because more substance dissolves in water than other liquid. It's mean that whenever it goes through air in a form of water vapor, the ground, river and stream, through our body in a form of blood, it dissolves chemical, minerals and nutrients into it. So this property is a beneficial properties for us. Third main point of lecture is dilute and concentrated solution. स्टूडेंट जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि वाई वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हाउ दिस प्रॉपर्टी इज़ अ बेनिफिशियल प्रॉपर्टी फॉर अस। तो आपने इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, तो आपने इसका आंसर लिखना है। इसके अलावा थर्ड मेन पॉइंट इज डाइल्यूट वर्सेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. What are dilute solution? Dilute solution are those solution which contain small amount of dissolved solute in a solution, while concentrated solution are those solution which contain large amount of dissolved solute in a solution. This is also very important question for your exam, that
व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट वर्सेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट आपने इन दो क्वेश्चन के आंसर को आपने आपकी बुक में अवेलेबल हैं, आपके नोट्स में हमने प्रोवाइड किए हुए हैं उनमें अवेलेबल है इनके आंसर। तो आपने इसके आंसर को याद रखना है, पेपर एग्ज़ाम के लिए आपने इसके आंसर को याद रखने हैं। थर्ड आते हैं होमवर्क की तरफ। होमवर्क बच्चों आपका है, व्हाट विल बी द डिसएडवांटेज इफ़ वाटर इज़ नॉट अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बच्चों इसका आंसर भी आपके नोट्स के अंदर मौजूद है, तो आपसे वहाँ से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन है कि वाटर अगर यूनिवर्सल सॉल्वेंट ना होता तो उसके क्या नुकसानात होते, इसका आंसर आपने अपने नोट से लिखना है। सेकंड, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बट इट कैन नॉट डिज़ोल्व ऑयल, वाई। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो है लेकिन ये ऑयल को डिज़ोल्व नहीं करता, क्यों नहीं करता, इसका आंसर भी आपने लिखना है। इसके आंसर भी आपके पास इस लेक्चर के अंदर है, तो आपने अपनी वर्डिंग में इसका आंसर भी लिखना है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन दिस मेन पॉइंट एंड दिस मेन पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम एंड दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम। तो आपने इन 3 क्वेश्चन को याद भी रखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।